Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. I hope you all are fine and safe in your home. So students, today we are going to start the new chapter 6, which is combustion and flame. So students, this is a very interesting chapter in which you are going to know that how combustion and occurs and what are the different types of flames we observe in our daily lives. So students, we use different kinds of fuels for our daily purposes at home, industries and for running automobiles also. So हम डेली न जाने कितने तरह के फ्यूल्स यूज़ करते हैं अपने घर में, इंडस्ट्रीज़ में और गाड़ियों को चलाने के लिए भी. So what are the some examples of that fuels? Some examples of that fuels are wood, charcoal, cow dung, petrol, coal, diesel, compressed natural gas means CNG, liquefied petroleum gas means LPG, etc. So these are the examples of some fuels which we use in our daily lives. So students, you are also familiar with the burning of candle. तो आप अच्छी तरीके से familiar है कि कैसे एक कैंडल जलता है. So tell me now, what is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? तो आप हमें अभी ये बताइए कि डिफरेंस क्या है एक कैंडल के जलने में और एक फ्यूल के जलने में. सो आप शायद यही गेस करेंगे कि कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. तो आपने शायद यही गेस किया हुआ होगा कि कैंडल एक फ्लेम के साथ बर्न करता है लेकिन कोल में कोई फ्लेम नहीं दिखता है हम लोगों को. सो सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द chemical process of burning and the types of flame produced during this process. Okay, so let's start this interesting chapter. So first of all we are going to study a basic term which is combustion. So what is combustion? Before studying this term, I am going to tell you about, to remember something, the activity of burning magnesium which you all performed in class 7. तो क्लास 7 में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया था, पढ़ा भी था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का जलना. तो हमने वहाँ पे क्या जाना कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. तो वो सिमिलर एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी चारकोल को लेके. चारकोल को भी हम लोग अगर जलाएंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. ओके, तो चारकोल एयर के साथ बर्न कर जाता है अच्छी तरीके से. और हम लोग को ये भी पता है कि कोल भी बर्न करता है इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. सो नाउ कम टू द टर्म combustion. So what is combustion? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen and generates heat in this process. तो combustion एक chemical process है जहाँ पे एक substance ऑक्सीजन के साथ react करता है और heat generate करता है. Okay? So now how we can consider that which one is a combustible substance and which is not? तो हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि एक सब्सटेंस ये सब्सटेंस कंबस्टिबल है या फिर नहीं है. सो व्हाट आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस? द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन. तो जो सब्सटेंसेस कंबशन का जो ये केमिकल प्रोसेस है ये प्रोसेस कर पाएगा, इट मीन्स हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. Again we can tell that it means that these substances give off heat and sometimes light, okay, as a flame or glow when they react with oxygen. और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये substances जब reacts करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या देते हैं, हीट देते हैं और लाइट देते हैं जैसे कि फ्लेम, और ग्लो करते हैं. तो ये सारे सब्सटेंसेस को हम लोग बोल सकते हैं combustible substances. Now the substances which do not catch fire readily are non-combustible substances such as sand, water and glass. जो substances में easily fire नहीं लगता है, easily आग नहीं लगता है, वो सारे क्या हैं, non-combustible substances हैं. Example क्या है, sand, बालू,
water or glass. Okay, now we are going to perform a activity which is activity 6.1. Here you have to collect some materials like straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces, glasses, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion takes place, the material combustible, otherwise mark it as a non-combustible material. तो इस एक्टिविटी में आपको कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करना है, जैसे कि स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करना है और इन सब को एक एक बार जलाना है। तो और आपको ये फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी मटेरियल्स कंबस्टिबल है और कौन कौन से मटेरियल्स नॉन कंबस्टिबल है। सो हियर देयर इज द टेबल 6.1. Here wood is easily combustible. Paper is also a combustible substance, whereas iron nails, iron nails and stone pieces are non-combustible substance, as well as gas is also a non-combustible substance rather than kerosene oil, charcoal, matchstick, straws, wood, paper are all combustible substances. Okay. Now another activity which is activity 6.2. First of all, you have to fix a lighted candle on a table. Put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Okay, तो यहाँ पे आपको एक कैंडल जलाना है और उसको टेबल पे रखना है। ठीक है, टेबल पे रख के कैंडल जलाना है और उसके ऊपर एक ग्लास चिमनी, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, आपको वो डाल देना है। दूसरा और एक कैंडल जलाना है जहाँ पे आपको एक ऐसे ही ग्लास चिमनी डाल देना है और उसको वुडन जो एक ब्लॉक है वहाँ से उसको ढक देना है। ठीक है, उसको कवर कर देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। तो उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि वो जो फ्लेम है, कैंडल का जो फ्लेम है वो जल रहा है, उसके साथ क्या हुआ। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। इसके बाद आपको जितने सारे ब्लॉक्स है उसको रिमूव करना है, उसके बाद चिमनी को वहाँ पे रख देना है। ठीक है, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, उसके बाद फिर से आपको फ्लेम ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट द ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट डज हैपेंस इन दिस थ्री केसेस, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। ये जितने सारे क्वेश्चन है आपको इसके आंसर देने हैं ये एक्टिविटी करने के बाद। बट स्टूडेंट यू हैव टू बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ बर्निंग कैंडल। आपको केयरफुल रहना है जब आप एक कैंडल को बर्न करेंगे, इसके साथ आपको एक केयरफुल सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने हैं। ओके, सो आफ्टर दिस एक्टिविटी व्हाट we observe that for combustion air is very necessary. Okay, the candle burns freely in case when air can enter the chimney from below. तो आपको ये एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व करने को मिला कि एयर बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़, कोई भी कंबशन प्रोसेस के लिए। ओके, अब फर्स्ट केस में क्या देखा आपने कि कैंडल इजीली बर्न हुआ क्योंकि एयर चिमनी के नीचे से और ऊपर से आ सकता है। बट इन केस बी वेयर when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produce smoke. लेकिन केस जो बी है वहाँ पे एयर बिलो से नहीं, मतलब नीचे से, वो चिमनी के नीचे से नहीं आ पा रहा था, हवा नहीं आ पा रहा था, एयर नहीं आ पा रहा था, इसीलिए वो जो फ्लेम है थोड़ा हिल रहा था और थोड़ा स्मोक भी छोड़ रहा था। बट इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। लेकिन केस जो सी है वहाँ पे जो फ्लेम है वो फाइनली पूरा बुझ गया। और क्यों बुझ गया, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने वुडन जो एक था वहाँ से वुडन प्लेट लेके हम लोग उसको ढक दिए थे और वहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं लग रहा था, एयर नहीं आ रहा था, इसीलिए वहाँ पे बिल्कुल भी फ्लेम नहीं जला। मतलब हम लोग ये कंक्लूड किए कि एयर के बिना कोई भी कंबशन का जो प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस नहीं होगा, वो नहीं होगा। ओके, now what are the conditions necessary for the combustion to take place?
कौन कौन सा कंडीशन बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है एक कंबशन जो प्रोसेस है, कंबशन जो केमिकल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए? द फर्स्ट वन इज कंबशन रिक्वायर्स फ्यूल. Combustion only takes place when there is a fuel which produces heat and light when it catches fire. For example, petrol and diesel. Combustion को हमेशा फ्यूल रिक्वायर होता है, मतलब फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है और ये तभी कैरी हो सकती है. एग्जाम्पल क्या है? और तभी वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है? हीट एंड लाइट. एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोल और डीजल. ओके. सेकेंड वन इज कंबशन रिक्वायर्स एयर. So we can prove it with the help of the following experiment. A candle keeps burning in an open air. However, when we cover it with a glass or a jar, it only burns until the oxygen inside it is consumed. Once the oxygen is exhausted, the flame of the candle flickers off. तो ये एक्टिविटी वही है जो हमने अभी परफॉर्म किया 6.1. हमने वहाँ पे क्या देखा कि कंबशन के लिए एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. द थर्ड वन इज कंबशन रिक्वायर्स हीट. कंबशन में हम लोगों को हीट की भी ज़रूरत पड़ती है. ओके. नाउ देयर इज अ टर्म इग्निशन टेम्परेचर. सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ combustible substance catches fire or starts burning when heated in the air is called its ignition temperature. सबसे लोएस्ट, सबसे जो कम टेम्परेचर होता है, जब से सबसे कम टेम्परेचर में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस में फायर आग लगता है और बर्निंग करना स्टार्ट करता है जब हम लोग हीट देते हैं एयर में, तो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. सो हियर देयर आर सम इग्निशन टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक वाइट फॉस्फोरस नीड्स ignition temperature is 35 degree Celsius. Petrol's ignition temperature is 246 degree Celsius. Kerosene ignition temperature is 220 degree Celsius. Diesel 210 degree Celsius. Wood 300 degree Celsius. Coal 454 degree Celsius. Piece of paper 233 degree Celsius. Okay, these are the lowest temperature at which these substances catches fire and starts burning when heated in the air. Okay. Now what is forest fire? Forest fire क्या होता है? Wildfire also called forest, bush or vegetation fire. Okay. And can be described as any uncontrolled and non-prescribed combustion or burning of plants in a natural setting such as a forest, grassland, brush land or tundra, which consumes the natural fuels and spreads based on environmental conditions, for example wind and topography. तो कोई भी फॉरेस्ट फायर को या फिर बुश या फिर वेजिटेशन फायर को क्या बोला जाता है? और एक नाम से वाइल्ड फायर. ओके. उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कोई भी अनकंट्रोल, जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई प्रेस्क्राइब, मतलब कोई पहले से हम लोग को जानकारी भी नहीं होती है, अचानक नेचुरल फ्यूल्स के वजह से, नेचुरल फ्यूल कंजम्पशन के वजह से वहाँ पे अचानक से आग लग जाता है. और ये कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर बेस करता है, जैसे कि हवा, टोपोग्राफी, ये सब के ऊपर. ठीक है. ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर. तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, बहुत ज़्यादा हीट के कारण समर में कुछ ड्राई गैसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है? आग लग जाता है. ठीक है. सूखे जो पत्ते या फिर ग्रासेस जो होते हैं उनमें क्या होता है? आग लग जाता है अचानक से एक्सट्रीम हीट के वजह से. और फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स. और फिर उस छोटे छोटे ग्रासेस से वो यहाँ पे स्प्रेड कर जाता है ट्रीज, और धीरे धीरे पूरा फॉरेस्ट में वो फैल जाता है. और ये जो फायर जब लगता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ये बहुत डिफ़िकल्टी से कंट्रोल हो सकता है. रिसेंटली दिस हैपन्स इन अमेजन फॉरेस्ट. आई होप यू ऑल हर्ड द न्यूज़. ये अमेजन फॉरेस्ट में भी ऐसे लगा है और भी बहुत सारे फॉरेस्ट में लगा है, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं. तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न हाउ फॉरेस्ट कैचेस फायर. ओके. नाउ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इन योर बुक. आई एम गोइंग टू tell you about the history of matchstick now. Okay. The history of matchstick is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood
dipped in sulfur when used as matches in ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago. तो हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक जो है बहुत ही पुराना है। 5,000 साल से पहले पाइन वुड का छोटा छोटा पीस लेके उसमें सल्फर में डिप करके उसको मैचेस हिसाब से मैचेस के तरह यूज़ करते थे। कौन यूज़ करते थे? एंशिएंट इजिप्ट के लोग यूज़ करते थे। और ये जो अभी मॉडर्न सेफ्टी जो मैचस्टिक हम लोग यूज़ करते हैं वो कब डेवलप्ड हुआ? 200 साल पहले ही ये डेवलप किया गया। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made of suitable wood. तो एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसमें क्या क्या रहता है? एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस और कुछ ग्लू देके और कुछ स्टार्च देके उसको उसका मैचस्टिक का जो हेड होता है ब्लैक कलर का उसमें वो मिक्सचर रहता है और नीचे उसको सूटेबल वुड से ग्रिप दिया जाता है। ओके, when struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to heat of friction. This started the combustion of the match. जब हम लोग मैचस्टिक को मैच बॉक्स के साथ ऐसे मतलब घिसते हैं, रफ सरफेस के अगर जब कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है? वो फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर पास आ जाता है। ठीक, उसमें फॉस्फोरस रहता है, वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पे आ जाता है और हीट हम लोग जब घिसते हैं हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो इग्निशन टेम्परेचर में आ जाता है और वो जलने लगता है। ओके, However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. These days, the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate. तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये धीरे धीरे हम लोग को क्या पता चला कि बहुत डेंजरस है। जो हम लोग यूज़ करते हैं उनके लिए भी डेंजरस है और जो बनाते हैं मैचस्टिक्स वर्कर्स उनके लिए भी डेंजरस है। तो इसीलिए आजकल वो वाइट फॉस्फोरस यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ एंटीमोनी और ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट ही रहता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास and a little red phosphorus, okay, which is much less dangerous. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. अभी जो रबिंग सरफेस बनाया गया है वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर्ड ग्लास है, मतलब कांच थोड़ा सा पाउडर्ड ग्लास है जो हम लोग को नहीं दिखेगा और कुछ रेड कलर का फॉस्फोरस होता है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस है वहाँ पे जो कम डेंजरस होते हैं वाइट फॉस्फोरस से। जब हम लोग मैचस्टिक को लेके वहाँ पे रब करते हैं, घिसते हैं, तो तब वो रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होके कंबशन करता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद द पोटेशियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। तो जब वो वाइट फॉस्फोरस में वो कन्वर्ट करता है, इमीडिएटली वो रिएक्ट करता है। जो पोटेशियम क्लोरेट होता है मैचस्टिक में वो इमीडिएटली उसके साथ रिएक्ट करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है और एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड का इग्नाइट मतलब इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है और वो जलने लगता है। ओके, देन स्टार्ट कंबशन। ओके, सो स्टूडेंट्स राइट ऑल द नोट्स इन योर फेयर कॉपी एक्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक। मीन्स आपको जितने भी सारे नोट्स दिए गए हैं आपको लिख लेना है। हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक आपके बुक में है, वहाँ से आप पढ़ेंगे बस, इसको आप अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, you have to learn the notes and read the chapter. Okay, and students, if you all have any doubt you can ask me. I am going to clear your all doubts. The remaining part of the chapter we will do in the next class. Till then, stay safe in your home and study well. Thank you, students.